नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी मंगलवार बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, कोरोना पर होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में बोले अमित शाह, मतभेद भूलकर दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सब हाथ मिलाएं। कोरोना को लेकर तमिलनाडु सरकार हुई सख्त, चेन्नई में 4 जिलों में फिर लगाया गया लॉकडाउन। गुजरात के कच्छ जिले में एक बार फिर भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर भागे लोग। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है अहंकार। नितिन गडकरी ने कहा अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा भारत के हिस्से का पानी, रोकने की हो रही है तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता, नहीं तोड़ सकती इसे कोई ताकत। नवंबर महीने में चरम पर होगी कोरोना की सुनामी, कम पड़ सकते हैं वेंटिलेटर्स और बेड्स। अमेरिका में बुरे हालात, कोरोना के 25,540 नए मामले आए सामने। अब तक 1,15,436 लोगों की हो चुकी है मौत। गंगाराम अस्पताल मामले को लेकर केजरीवाल सरकार की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। प्रियंका गांधी के सवाल पर शिक्षा मंत्री का पलटवार, कहा रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले की जानकारी आपको थी या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरा राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र, प्रभात झा और शिवराज सिंह रहे साथ। अब समाचार विस्तार से। सिडको पुट्स जीवीके in dock on airport at Navi Mumbai. According to report from WNS Mumbai, Maharashtra Government Body City and Industrial Development Corporation, which owns 26% in the 17,000 crore Navi Mumbai International Airport project, has asked the GVK Group to prove it has the financial capability to complete the project after its group companies were downgraded by a series of rating firms. At the same time, Bidvest of South Africa, one of the investors in Mumbai International Airport, has moved the arbitration panel seeking to prevent GVK from issuing any share to third-party investors unless it gets Citco clearance in this regard. India to begin gas trading with 3 delivery hubs. According to report from WNS New Delhi, India will take its first baby step towards deregulation of the natural gas market on Monday when Oil Minister Dharmendra Pradhan launches the country's first gas exchange, a move that will ultimately lead to market-driven pinching and boost consumption by improving availability. IEX, the market leader in power trading, is offering the platform with Dahej and Hazira in Gujarat and Kakinada in Andhra Pradesh as delivery location or hubs for pinching the contracts. This is unlike the US, which only has the Henry Hub, a gas pipeline located in North Louisiana, as the delivery point for contracts on the NYMEX. DGFT cautions exporter-importer against fake site. According to report from WNS New Delhi, the Directorate General of Foreign Trade has cautioned exporter and importer against fake website and platform which are always delay charging fees and collecting their confidential data. It has been brought to the notice of the Directorate that certain vested interests persons are using multiple websites and email IDs, mimicking and resembling official website and email of the DGFT for misleading and dumping exporter and importers. DGFT said in a trade notice dated June 11, NMDC resumes mining operation at Bacheli mine. According to report from WNS New Delhi, the state-owned NMDC, which had to stop work at Bacheli mine in Chhattisgarh following the state government intervention, has resumed mining activity at the iron ore complex. A senior company official said. NMDC director PK Satpathy also said the matter is being discussed with the state authorized and the Ministry of Steel is being apprised of the present status. According sources, the firm's operation at the mine in Bichali were halted on June 11. Government oil to compensate Assam gas tragedy victims. According to report from WNS Assam, Union Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan on Sunday said people affected in Oil India Baghjan gas well tragedy will be compensated. Pradhan reached Assam on Saturday to revive the situation arising after a blowout and success inferno that killed 2 persons. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal
who accompanied Pradhan to the disaster site and relief camps, said a model and a veterinary hospital, a higher secondary school and a skill development center will be set up in Baghjan. Today I announced that the Baghjan embankment will be constructed at the cost of 27 crore rupees. CM Petroleum Minister to visit site of Assam gas leak and fire. As per a release from the Chief Minister Office, Pradhan stressed on working on a war footing to cap the well. He also assured that his ministry is closely monitoring the situation and assured that all necessary steps would be taken by the Government of India to provide secure to the affected families. मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। Andhra to recommended CBI probe into TDP resigns fiber grid project. According to report from WNS Hyderabad, the Andhra Pradesh government has decided to recommended a CBI probe into the alleged irregularities in the previous TDP resigns 350 crore optic fiber grid project that offer TV, phone and internet service over a single connection across the state. Information and Public Relations Minister P. Venkatramaiah said a cabinet subcommittee which probed the irregularities during the TDP term has submitted its report. किसानों को निर्यात के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के मुजफ्फरनगर के किसान सुनील कुमार के पास निर्यात का कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन उनकी 750 किलोग्राम लीची लंदन पहुंच गई। वैसे ही एक अन्य किसान की 5 टन लीची जर्मनी जा रही है। आगे भी देश के कई किसानों के उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचने की कवायद जारी है। IT मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह कवायद की जा रही है। इस पूरी कवायद में किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए गांव से बाहर तक नहीं निकलना पड़ता है। माल बिकते ही पूरी कीमत किसान के खाते में आ जाती है। किसानों के CSC के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को यह बताना पड़ता है कि उनका उत्पाद क्या है और उसका साइज क्या है, वह किस कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं। पोर्टल पर किसानों को अपनी जमीन की जानकारी एवं किसान के होने के अन्य प्रमाण भी देने पड़ते हैं। बैंक खाता होना जरूरी है, पैन कार्ड नहीं है तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। योगी ने कहा, आपदा काल में उदाहरण बना उत्तर प्रदेश। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा करते हुए कहा कि कोरोना काल के आपदा के समय जो राज्य ने उत्कृष्ट स्तर पर कार्य किया है वह देश के लिए एक मिसाल बना है। उन्होंने कहा, जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं और पूरा सिस्टम उसके साथ जुड़ता है तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। योगी ने कहा, आपदा के दौरान प्रदेश ने उत्कृष्ट स्तर पर कार्य किया है जो देश के लिए एक उदाहरण बना है। वर्तमान में पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है। मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में आए 10,48,166 श्रमिक परिवारों के खातों में DBT के माध्यम से 104 करोड़ 82 लाख रुपए के ऑनलाइन हस्तांतरण संबंधी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इसके माध्यम से प्रति परिवार 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान, मील के पत्थर साबित होंगे सभी एक्सप्रेसवे। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य के आधारभूत ढांचे में मील का पत्थर साबित होंगे। योगी ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश को जिस आर्थिक विकास की तमन्ना थी उसे आगे बढ़ाने में ये एक्सप्रेसवे मददगार साबित होंगे। विगत 3 वर्षों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शासन प्रशासन की टीम ने बेहतर कार्य किया है और इसके लिए काफी प्रभावशाली कदम भी उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने 750 करोड़ रुपए के ऋण का चेक सौंपा है। क्या अमित शाह 2024 में प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं? WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट बताती है कि सूत्रों की माने तो अब यह साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया और पार्टी में अमित शाह की भूमिका बदल गई। अमित शाह गृह मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। 6 अप्रैल 2019 में गांधीनगर में अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का नहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। उनके नामांकन के मौके पर
राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में कुछ खबरें भी उड़ी। अमित शाह 2019 के बाद की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं। वे 2024 में प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के नेताओं से बात करें तो अब यह साफ हो चुका है कि 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर कौन होगा। वहीं पार्टी में अमित शाह अपनी भूमिका को लेकर तैयारी में है। अब देखना यह है कि मोदी अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने को लेकर तैयार होते हैं या नहीं। आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।